voice right now. So, yeah, the moment I just want to introduce myself. I am Pooja Gupta. I am currently working for as a consultant in TCS and as a volunteer in Mavisha Foundation, well-known, I should say, well-known NGO which is registered by Niti Aayog. So we'll talk about a very brief about Mavisha Foundation quickly. I just want everyone should interrupt in case there is any doubt, please. Otherwise, I would be able to understand that whether somebody is able to accept, grasp my voice or not. Vikrant, is it okay if Yeah, I'll make? we can hear you, ma'am. We can Yeah. hear you. So it's okay. Do you want me to continue in English or Hindi? Should it be a mix of English or Hindi? I'm fine with everything. Can be any language, no issue. Okay, great. Thank you so much for confirming. So let's quickly start with why we are talking or we are meeting here for this particular session. So first we'll talk about the Mavisha Foundation, which is definitely a great empowering communities which is doing in associated with the Niti Aayog, and finally giving multiple communities education, training, hunger drive, job opportunities. There are multiple sessions that they are doing it, and we as a volunteer are supporting them. That is what we are doing it here. Here we are talking about the empowering women. The topic itself is too much strong that we'll start visualizing how the things are happening in the rural communities. So with the empowering women, uh, one woman, if we are empowered, then we are empowering a community. But if we'll start empowering multiple women or enough women, then definitely it will empower an entire world. So this is what I should say a starting point as of today. And we are already in that generation where we are helping, or we are actually would like that in rural communities also the women will start empowered with the different support systems, so that the entire world will help in a brighter future. So that is what the overall I should talk about the empowering women here. Looking about the agenda here, we'll talk about the introduction, what exactly the empowered women in rural communities, then how it is important to empower them, then challenges, what challenges they are facing, what all strategies has been created to empower them by the government, by the NGOs, or then last the conclusion that we'll talk about. With after me there is another speaker who will talk about the empowering women in rural communities. Okay, so empowering women in rural communities, what we mean. I mean, if anybody wants to, it is going to be an interactive session. See, I really don't want only I am talking about it. The moment you will grasp it, you will help us in supporting further. So that is what the agenda of this overall session here. So I would like if somebody can tell me their thought process about empowering women in rural communities, then we can talk about this slide. Anybody can talk about that. Anyone would like to give a try? All right. So, Ma'am, in rural area, not only the young men are not getting job opportunity, so there is no question of women getting job opportunity in rural area. So, agree. so
the today's subject that you took, that is very important, empowerment of women in rural area. Right. I agree with you on this, and definitely there are certain parameters or certain, or I should say, circumstances also where we would like each one of us to support them so that they can be empowered, irrespective of women. Even the men also will be empowered to do their own jobs and can have the better future. So here we are talking specifically about the women because those are the in rural communities are because they are the one. At least there are still a percentage around 33% of the women are still, as of today, if I'll talk about the data, they are still not aware of their own empowerment. So I'm taking empowerment as a word, although they don't know right now what they would like to do, how they can make their future better. So women empowerment is not just a phrase. I should say talk about this. So it's very it's a catalyst for transformative change in society worldwide. I am reading it through. The only reason is that these are very strong words. In our quest for gender equality, today we are talking completely about the gender equality, social progress, better future, better India, everything. The digital world, entirely we are talking about it. But how much in the rural areas the people knows about it. So that is what our objective, to reach them and tell them what they can do to make their future better. So it's crucial to focus our attention on the often overlooked yet resilient heart of many nations, and that is one of them is the rural women. So the today's webinar that we are talking about empowering women in rural communities are majorly highlighting on the women who are driving change within the confines of the remote and the undeserved areas. Now how they will help them, us, maybe with the help of to increase the education system, the social, the cost effectiveness, and the political reasons. So these are the major strengths of the woman right now we are talking about it. So we'll be giving here the what are the importance, what are the challenges they are facing here, and then how these educational, social, cost effective, and political strength will help them in developing them better. So the primary goal of our webinar is to explore significant empowering rural women, and acknowledging their empowerment is central to fostering vibrant, equitable, and sustainable communities. Now today's question is, हम ये सब कैसे कर सकते हैं? How we can do that? Is it possible to make 100% women empowered? We don't know right now, correct? So there are certain aim with this webinar we are starting, and we are thinking about it that maybe we can, if we'll start raising the awareness about their critical role that the woman is playing in the community development, then maybe they will understand what they can do for their own future itself, and with their future the betterment of the entire society too. We have to highlight certain specific challenges like limited access of the education to them. The healthcare facilities are not that much available in the rural areas. Maybe there are certain economic disparities are there, and we all know gender-based violence is there. Though as of now, these certain things has been improved in the metro areas, but still today we can still hear about, and there are so many things we can
5 to 6 హాలు ఉంటారు డైలీ. Sorry, I am not able to hear. Anybody is able to hear her? Sorry, can you repeat? Who was talking about it? I'm sorry, I'm not able to hear you properly. Maybe it's a network issue at my end, but if you can repeat, it will help me to understand what you would like to say. All right. Uh, so coming to our points that we were discussing. So coming to the points that we were discussing about, maybe with the help of these things, maybe effective strategy or initiatives that government is also taking today in that area, maybe emphasizing the education will give if people can help them to educate in a better way. Maybe some economic opportunities, if we can show them these are the opportunities that help them in their own strengths itself, the better healthcare facilities, and if we can tell them about the legal rights or the technology that is available today. Ma'am, Yes. hello, ma'am. Good evening. Yes. Could you please uh, translate it to Hindi also? I have Yeah. a couple. I'm so sorry. I'm so sorry. That is what I asked in the starting. Okay. Yeah. See, हम ये वेबिनार जो ये कर रहे हैं, इसका हमारा मेन एम था कि we can हम लोग the women which are in the rural areas can be aware of कि क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. तो हम कैसे बता सकते हैं कि इन वुमेन तक हम कैसे पहुंचेंगे? हमें ऐसे ट्रेनिंग सेशंस लेने पड़ेंगे या जाकर हमें समझाना पड़ेगा उन्हें कि लेट देम, उनको अवेयर करना पड़ेगा कि उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या चैलेंजेस हैं उनके समझने पड़ेंगे. अगर एजुकेशन नहीं है, वहाँ पे लिमिटेड एक्सेस है या हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है या फिर जेंडर बेस इक्वालिटी नहीं है, तो देन इट इज समथिंग हम लोगों को उनको समझाना पड़ेगा कि हाउ, मतलब कैसे वो लोग अपने लिए बेटर सोच सकते हैं. Am I able? मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं आप? Can you hear me? Yes, yes. मैं प्रिंसिपल हूँ इंग्लिश मीडियम स्कूल पर. अच्छा जी. और ये जो आपका एम्पावरमेंट है मुझे बहुत अच्छा लगा. और ये जो रूरल एरिया है, तो ये आई फील रूरल एरिया कैन बी इन द अर्बन एरिया टू. हाँ, हो सकता है. मुझे कुछ महिलाएं मेरे सामने आते हैं कि उन्हें फीस भरने में दिक्कत है या लाइफ में ये समस्या आ रही, तो ये इसके बारे में मैं कैसे कोप अप करना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे होना है, अकेले सिंगल पेरेंट कैसे आगे बढ़ना है. हाँ जी, हाँ तो जी. इसके बारे में अगर मैं चाहता हूँ कि एक को अगर मैं पढ़ा सकता हूँ तो 1000 को पढ़ा सकता हूँ मैं. सही बात. यही है जो हम कह रहे हैं कि वी आर एम्पावरिंग वुमेन इन द वर्ल्ड इटसेल्फ. तो जब हम ज्यादा लोगों को समझा पाएंगे, ज्यादा औरतों को बताएंगे, देन तभी पता चल पाएगा कि कैसे एक के बाद एक वो लोगों को अपना राइट समझ आएगा.
तो हमें गाइड कीजिए कि ये एम्पावरमेंट इन लोगों में कैसे करना है। हाँ अभी जी। या तो ये लोग लो इनकम ग्रुप से आते हैं, इनका समस्या यहाँ से शुरू होती है कि घर का रेंट, फिर रेशन, चाइल्ड एजुकेशन और देन लाइफ। नाउ there is a lot of development in the country, but then looking at this strata of the society, nobody want to do that empowerment which your organization wish to do that. I would like to congratulate the entire team, the president and management who are working on it. I wished like I would be part of your team. पर मेरे Thank पास you. ये लोग आते हैं तो मुझे काम करना है इनके लिए, तो कैसे करना है? हाँ, तो वो हम अभी इसके आगे बताएंगे कि हम क्या-क्या कर सकते हैं। ऐसी चीज जब अगर वो लोग आते हैं तो हम क्या-क्या कर सकते हैं। वेयर ये सेशन ही इसलिए रखा गया है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों को, उन प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। मे बी कुछ समझा कर, जैसे आप प्रिंसिपल हैं, आप बच्चों को पढ़ाते होंगे, इसी तरीके से कोई महिलाएं आती होंगी, उन्हें बताते होंगे, है ना, समझाते होंगे, तो समझाकर भी बहुत सारी चीजें उन्हें समझ आ सकती हैं। ठीक है, देन अभी आगे की उसमें स्लाइड्स में मैं बताऊंगी कि क्या क्या हम कर सकते हैं। हमारा छोटा सा एफर्ट उनको हेल्प करेगा कैसे। ये मेरे साथ अभी तेजस्विनी मैडम है, वो कुछ बात करना चाहेंगे आपसे। ये एम्पावरमेंट जो है तो उन्हें क्या लग रहा है कि बोलना। नमस्ते मैडम, मेरा किसी समस्या है, मैं कुछ करना चाहता हूँ। बोलो। नमस्ते मैम। नमस्ते, बताइए आप। महिलांच्या समस्या आहेत, कशा त्याच्या पुढे रस्ते मग मार्गदर्शन करावं ना, मग अशाच परिस्थिती। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो। हाँ, मैं सिंगल हूँ ना, मेरा बेटा स्कूल में पढ़ता है ना। ये आप देखिए, जब तक आप बताएंगे नहीं ना, किसी को पता नहीं चल पाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए आप ही को ही बोलना पड़ेगा। फीस के बारे में बोलना है। हाँ जी, बताइए। तो इनका कहना है कि अब ये एम्पावरमेंट किस तरह से कर सकते हैं। हाँ, तो वो उसी के लिए मैं बताने के लिए ही बाकी की हैं चीजें। बट देखिए, एम्पावरमेंट में आपको पता होगा कि आप क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में, राइट। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, कुछ को बहुत अच्छा कढ़ाई वगैरह आती है, किसी को बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई पढ़ा सकता है बहुत ज्यादा, है ना, ऐसा सब कुछ है होता है। तो वो करता है, कोई हैंडीक्राफ्ट का काम कर सकता है, कोई जना है जिसको मोबाइल पे अच्छा काम करना आता होगा, तो सबका अलग अलग काम आता है। मेरा तो पार्लर है। तो आप उसी को ही बढ़ावा दे सकती हैं। आप आज की डेट में तो बहुत है इस पे, तो है ना। लेकिन कैसे करना है? हाँ जी, आवाज उनका कहना है कि मतलब अभी अगर आगे जाना है तो कैसे जाना है। अभी जो चल रहा है, जो उन्होंने एजुकेशन लिया है, तो उसी के हिसाब से वो चल रहे हैं। वो कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, कितना पेमेंट आ रहा है हर रोज, और सर बेटर एक क्या बार कर ऐसा सकते कर हैं। सर विक्रांत सिंगल दिस साइड, एक बार ऐसा कर सकते हैं, मेरी आपसे बात हुई थी, तो हम इस पर एक मीटिंग करके डिस्कस कर सकते हैं आगे की कैसे क्या वर्क करना है। जी सर। ओके सर, या थैंक यू।
ठीक है, तो हम जैसे हमने अभी सुना कि प्रॉब्लम्स हैं, तो कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखते हैं इसके बारे में। सो नाउ इम्पोर्टेंस क्या है इसके, इतना क्यों ज़रूरी है एम्पावर करना वुमेन्स को, ऐसा क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी इसलिए नहीं है कि भाई हम केवल उनके इक्वालिटी के लिए, कि भाई क्योंकि आदमी लोग कर सकते हैं इसलिए औरतों को भी करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट आपको अपने बारे में तो पता होना चाहिए ना कि भाई मेरी हेल्थ है, मेरी मतलब इट्स लाइक मेरा एजुकेशन है, मुझे बढ़ावा चाहिए, मुझे अपना फ्यूचर अच्छा करना है। तो ये जब तक हमारी फैमिलीज़ के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए, और डेफिनेटली वो हेल्प करेगा आपका सारा वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड और एंटायर कंट्री टू बी एम्पावर्ड। कैसे कैसे कर सकते हैं इसके लिए नाउ हम अब देखते हैं कि भाई देखो, हम एक कर सकते हैं कि हम सोशल प्रोग्रेस पर सेशंस दें, या जाकर हम लोगों से बातें करें, उनके एग्रीकल्चर में जो कि खेती बाड़ी करते हैं उन लोगों में उनसे बात करें। तो रूरल वुमेन, जो वुमेन हैं, जितनी भी औरतें हैं, हमने देखा होगा आजकल खेती बाड़ी भी बहुत अच्छा करती हैं, एंड वो लोग अलग से अकेले हैंडल कर रही हैं सारा कुछ। तो ऐसा नहीं है कि केवल वो कुछ कर नहीं पा रही हैं, वो बहुत अच्छा कर रही हैं। सो दीज आर द सर्टेन कुछ पैरामीटर्स हैं कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे हेल्प करेंगे उनके थ्रू। अगर उनको हम एम्पावर कर देते हैं तो वो समझेंगे कि हमारी इक्वालिटी क्या है, जेंडर्स इक्वालिटी कैसे, हेल्थ और एजुकेशन कैन बी इम्प्रूव्ड। उनका अगर फ्यूचर बेटर होगा तो पॉवर्टी हैज़ बीन रिड्यूस्ड, राइट। इसी तरीके से सोसाइटी में नेटवर्किंग बढ़ेगी, लोगों से बातचीत कर पाएंगे, अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन निकल पाएगा। अभी जैसे उन्होंने बात करी तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकला जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, वो हेल्प करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट में रूरल एरियाज। अभी चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, ये बहुत सर्टेन, बहुत ही ब्रीफ हमने आई कैन से हम कह सकते हैं कि बहुत हाई लेवल पे हमने ये चैलेंजेस लिखे हैं। इनके अंदर बहुत छोटे छोटे और चैलेंजेस भी हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो क्या चैलेंजेस हैं आजकल, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, उनको हॉस्पिटल्स नहीं है, या दवाइयाँ नहीं है, या उनको पता ही नहीं चल पाती कौन सी बीमारी है आजकल, राइट। तो जिससे कि डेथ रेट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। नाउ उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, या फिर रिसोर्सेज का कहने का क्या क्या पॉइंट हुआ, अगर खेती बाड़ी करनी है तो उसके लिए हमें पेस्टिसाइड्स चाहिए होंगे, या सीड्स चाहिए होंगे, या जो भी जमीन, सॉइल, वो सब में भी रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल। तीसरा चैलेंज जो हम जनरली सुनते हैं, जेंडर वायलेंस इज देयर, कि आपस में ही घरों में ही झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रही है। तो वो एक चीज़ है। अगर हम लोग फ्यूचर में खुद एज अ हम अच्छा कर पा रहे हैं अपने फ्यूचर को बेटर, तो ये सारे प्रॉब्लम्स को हम रिड्यूस कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई ख़त्म हो सकती हैं सब चीज़ें, बट हमारा ये स्टेप होगा टू रिड्यूस दैट, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम विल हेल्प देम कि नए नए ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कैसे आप न्यू टेक्नोलॉजी, जितना इतना सब कुछ हो रहा है दुनिया में, हम उसमें कैसे अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। कुछ ना कुछ कर हमारा पार्टिसिपेशन हो सकता है, राइट। तो इसके लिए क्या क्या हुआ कर रहे हैं, स्ट्रेटजी क्या है एम्पावर करने के लिए रूरल वुमेन्स को, दीज आर द ये कुछ चीज़ें हैं। जैसे एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में क्या काम हो रहा है कि लिटरेसी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वेबिनार्स कर रहे हैं, सेशंस दे रहे हैं, या गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया जा रहा है कि कैसे क्या-क्या आप देयर आर सेशन, वो लाइक एजुकेशन सिस्टम विल बी इंक्रीज, पहली, दूसरी, तीसरी और आगे भी आजकल कॉलेज तक का भी काम हो रहा है। स्किल ट्रेनिंग्स हो रही हैं। स्किल ट्रेनिंग्स में का क्या मतलब है यहाँ पे कि जैसे हैंडीक्राफ्ट का काम है, तो हैंडीक्राफ्ट में ही बढ़ावा दिया जा रहा है
कि एक बहुत बड़ा सेशन बनता है, उसके फिर वो लोग एग्जीबिशंस करते हैं, एग्जीबिशंस के थ्रू उनको उनका प्रचार होता है कि भाई दीज आर ये सारी चीजें बनाई हैं, आर्टिस्ट हैं बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी हैं जो खाना बहुत अच्छा बना सकती हैं। देयर आर सर्टेन निटिंग सिलाई कढ़ाई का काम बहुत अच्छा होता है। आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब चैनल्स पे भी बहुत सब कुछ आता रहता है कि ये देखो ये हुआ, इसने ऐसा बनाया, उसने वैसा बनाया। तो वो भी एक मीडियम हो गया है आजकल मोटिवेशन के लिए। तो इस टाइप से अवेयरनेस की वर्कशॉप्स हो रही हैं, मोटिवेशन की वर्कशॉप्स कर रहे हैं बहुत सारा। और ये केवल ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट और एनजीओज दोनों मिलकर ये सब काम करने के लिए आज खड़े हैं और लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं ये सब के लिए। हेल्थ केयर में क्या क्या हो रहा है? हेल्थ केयर में बहुत सारी गांव-गांव में क्लिनिक्स बन गए हैं, इसी जिससे कि दवाइयों की फैसिलिटी कर सकें, लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जा रहा है, कैसे कैसे वुमेन हेल्थ केयर के बारे में बताया जा रहा है कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, किसका यूज़ करना चाहिए, किसका यूज़ नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में, कौन सी दवाइयाँ कब ले सकते हैं, कौन सी दवाइयों की अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे सेशंस हो रहे हैं जो हेल्प कर रहे हैं आजकल रूरल वुमेन एरिया, रूरल कम्युनिटीज में टू एम्पावर द वुमेन्स इटसेल्फ। टेक्नोलॉजी अगर आप बात करें तो आजकल घर घर में हर बच्चे से लेकर बड़े तक के पास मोबाइल है, एंड मोबाइल में हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है। तो मोबाइल कैसे एक्सेस करना है, किसी को नंबर कैसे डायल करना है, उसमें कैसे आप अपने यूट्यूब और ये सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकते हो, तो ये सब चीज़ें उसमें बताई जाती हैं कि कैसे आप फ़ोन पर जाकर अपने ही किसी भी, जैसे अब इन्होंने बोला पार्लर है, तो पार्लर से रिलेटेड कैसे और अच्छा कर सकती हैं उस एरिया में। आप आजकल मोबाइल में कहीं पे भी चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा अच्छा ये भी चीज़ें करने से ये हो जाता है, राइट। तो इसी तरीके से स्किल ट्रेनिंग्स का भी काम हो रहा है उसी में ही। इसके अलावा लीगल राइट्स एंड एडवोकेसी, जो जेंडर वायलेंस है उसके लिए क्या क्या आपका अपना राइट है, अधिकार है, क्या कर सकते हो, किसके लिए क्या करना चाहिए, वो अवेयरनेस कैंपेन्स हो रहे हैं बहुत सारे। और सपोर्ट नेटवर्क हर जगह है, हर एरिया में। इट इज़ नॉट ओनली इन द लीगल राइट्स एंड एडवोकेसी, हर जगह पे, एजुकेशन में भी, हेल्थ केयर में भी, टेक्नोलॉजी में भी। आप किसी से भी पूछो, आजकल चलते चलते भी आप किसी से पूछ लो ना कि हाँ इसमें ये बता दो मुझे, तो वो बता देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बताता, बट वो डिपेंड करता है कि क्या है, किसको कितना पता है, उसको बढ़ावा देना है। पता सबको थोड़ा थोड़ा है, उसको बढ़ावा देना है। हम सब ने हेल्प करनी है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। इसके अलावा आपको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का यहाँ पे क्या मतलब है? आजकल हम अपने घर घर में तो काम करते हैं, बट घर से आगे कैसे लेकर जाएं, मार्केट तक कैसे लेकर जाएं। आपने देखा ही होगा, जैसे जो खेती बाड़ी करते हैं वो लोग क्या करने लगे हैं आजकल, हमारे पास हर एक उसमें एरिया में एक वो हो गई है, होलसेल कहूँगी मैं उसे, या क्या कहूँ, मंडी टाइप हो गई है, जिसमें कि वो लोग सब अपना मंडी में दें और मंडी से सब अपने अपने घरों में जा सकते हैं, है ना। तो ये ऐसे एक्सेस टू द मार्केट का मतलब ये है कि हम लार्जर मार्केट में कैसे अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे लोगों से नेटवर्क बना सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पहल है लोगों, गवर्नमेंट की भी, एनजीओज की भी, और आई शुड से हर एक लोग, हर बंदे की। इसके लिए सपोर्ट आप लोगों का भी चाहिए होगा, और जिनको हमें ट्रेनिंग देनी है, समझाना है, अवेयर करना है इनके बारे में, उनका सपोर्ट भी चाहिए होगा, राइट। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये फ्रॉम माय साइड दिस इज दैट्स इट। बट मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर, आप लोग भी शेयर करना चाहते हैं कुछ ऐसे? आप लोगों ने दिए होंगे सेशन, जैसे उन्होंने भी शेयर किया, प्रकाश जी ने, कि भाई ये काम वो महिलाएं आती हैं, फॉर्म कैसे भरना है, ये सारी चीज़ें हम छोटे छोटे उसमें समझाना शुरू करें तो वो लोग भी समझेंगे, वो एक से दूसरे को समझाएंगे, दूसरे से तीसरे को समझाएंगे। यही एक तरीका होता है वेबिनार्स और सेशंस का। तो ट्रेनिंग देना एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया आज की डेट में, जिससे कि हर बंदा अपने आप में एम्पावर हो सके।
आप लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं। यस, कोई शेयर करना चाहता है? मैंने अपनी तरफ से जितना बहुत ही कम बताया, बट जितना है अभी मैं चाहती हूँ कि सब जने उसी को ही समझें और कैसे हम कनेक्ट होकर लोगों की हेल्प कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे अभी। Ma'am, I would like to speak. या श्योर। My question to all the women: are we really getting equal opportunities? We, the women, should raise voice against it and put in efforts to get justice. मैम आई थिंक हिंदी में बोलना होगा, बहुत सारे they would like us to talk about in हिंदी itself। अच्छा, अगर विमेन एम्पावरमेंट चाहिए तो फर्स्टली विमेन को ही एम्पावर होना है, खुद से ही। मैं भी एक इम्पोर्टेंट चीज हूँ या एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हूँ इस एनवायरनमेंट का, ये विमेन ने पहचानना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज दैट। So instead of other areas, the woman herself should get empowered. And now the world has completely changed. पूरा बदल गया है माहौल, तो विमेन खुद मतलब खुद अपने बलबूते पे सबको ये करना है, राह दिखानी है। शी शुड नॉट वेट फॉर अदर्स कि चलो कोई आए और मुझे एम्पावर करे, वो खुद से एम्पावर होनी चाहिए। एंड सेकेंडली, जैसे पोलियो का डोज रहता है जगह जगह, उसके बूथ रहते हैं, वैसे ही विमेन एम्पावरमेंट के भी बूथ होने चाहिए। आई फील लाइक दैट, सो पीपल शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। आई एग्री, यस आई एग्री विद यू। ऐसा होना चाहिए, बट ये है कि कितनी आज की डेट में औरतें समझ रही हैं कि हमें एक्चुअली समझना है, कुछ सीखना है, कुछ नया। See, we have taken this topic and only 13 attendees are there. Correct. And we got 50 plus registration. Yes. So we so we need to change ourselves. That is the most important thing, I feel. Absolutely, but वही अवेयरनेस नहीं है। लोग मतलब लोगों को अवेयरनेस है ही नहीं कि कैसे हमें क्या करना है, क्या क्या हमारे लिए जरूरी है, क्या हम कर सकते हैं। अवेयरनेस की इतनी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सेल्फ अवेयरनेस इज मस्ट। पॉसिबल है कि सब जने ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नहीं करना जानते हो, ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं, है? मेरी टीम एक्चुअली एक जगह तो पूजा में मेरी टीम गई हुई है, तो उन्होंने वहां से वो डायरेक्ट उन्होंने कर रखा है। तो वहाँ अराउंड 30 लोग हैं जो मतलब लाइक दे आर इन अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी एंड पूरा जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तो वहाँ वो उनको सेशन इसलिए वो हिंदी में बोलने के लिए बोल रहे थे, तो वो डायरेक्टली उनसे कनेक्टेड हैं। ओके, बट नहीं 50 ने जिन्होंने रूपांशी इज देयर। माय क्वेश्चन इज कि 50 ने रजिस्टर किया, आउट ऑफ दैट ओनली 30। तो वो 50 उनको पता था कि कैसे ज्वाइन करना है? हाँ, टीम्स तो सभी एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, टीम्स करते हैं एक्सेस सब ऑलरेडी, क्योंकि और भी वेबिनार्स जैसे होती रहती हैं, तो टीम्स पर एक्सेस होता है। ओके, या एक्चुअली मैं बताता हूँ, मैंने मॉर्निंग जैसे लिंक शेयर करा है, तो मोर देन 15 पीपल ने तो लिंक देखा ही नहीं है। ये लिंक को हम लोगों को भी थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि लिंक एक दिन पहले शेयर किया जाए। हाँ, आई एम थिंकिंग तो बट लेकिन मैं चाहूंगी कि सब जने अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, एटलीस्ट विल गेट टू नो कि हाँ
क्या क्या हो सकता है, क्या क्या करना चाहिए, और मैं जब बोलोगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा कि हमें क्या करना है। और Yeah, Preeti ma'am, you can put your points. yes, Actually, women can be grown. I mean, the parents, they should treat women as well as girl child or boy child. They should treat them as a human, not you are a boy or you are a girl. So different, the way of their nourishment should not be different. It should be same. I feel that is only the seed that is growing vastly. Are you getting my point? What I want to say? मुझे ऐसा लगता है कि मतलब परवरिश में ही इतनी सिंप्लिसिटी होनी चाहिए कि हाँ तुम बच्ची तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, तुम्हें ऐसे ही बिहेव करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए. It should be, वो you know, starting you से are differentiation नहीं. you are a human being and you should be given equal opportunities whether you are a male or you are a female. Absolutely. So it depends on parents how they take care of their children. It is. And then government should make compulsory self defense training. That is also my one concern. लगता है कोई भी शेयर नहीं करना चाह रहा अपने एक्सपीरियंस ना. And male community can be made aware that now the world has changed and the women are as important as they are. Correct. One more thing, we have observed that in Saas Bahu serial and all those things we have seen. Yes, mother-in-law is always सासू माँ जो होती है वो always dominating होती है. Like that in many serials it is shown. So a woman must support and stand for other women. If we achieve this, then definitely there will be there won't be necessity of women empowerment. All the things will be at their places properly. चलिए हम अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं शेयर करना चाहते हम ये पूछ लेते हैं, सेशन कैसा लगा सबको? इसका एक्सपीरियंस तो शेयर करना चाहेंगे लोग. हाँ जी. I would like to share the experience, ma'am.
Actually, the topic which is chosen is really very good. Being a woman, I'm feeling proud of myself that I'm attending this training, and there will be many more such trainings in future too, which I will be attending. Thank you so much for that opportunity. Thank you so much. Someone is thinking about women, that is also one achievement, you can say. मैडम मैं मेरी राय रखना चाहूंगा। मैं लातूर महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। मैं लातूर एक महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। महाराष्ट्र इज सपोज टू बी प्रोग्रेसिव इन इंडिया। महाराष्ट्र स्टेट इज सपोज टू बी प्रोग्रेसिव इंडिया इन एजुकेशन सेक्टर। जहां तक महिला एजुकेशन का मैं बात कर रहा हूँ, उसके पहले मैं ये पुट करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम पिछले 30-40 साल से बहुत अच्छा है। यहाँ पे एजुकेशन जो है ऑलमोस्ट फ्री है इन अर्बन एरिया एज वेल एज इन rural area. I will talk particularly about rural area. Second thing, Latur is a district place in Maharashtra and it is one of the important education sector. अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो पूना, मुंबई ये एजुकेशन सेक्टर इंपॉर्टेंट सेंटर्स कहे जाते हैं, उसमें से लातूर भी एक इम्पोर्टेंट एजुकेशन सेक्टर है। और अलग बात यह है कि मैं यहाँ पे ट्यूशन क्लासेस चलाता हूँ, साइंस की कोचिंग क्लासेस लेता हूँ, 8, 9, 10 साइंस की। तो मेरा 100 बच्चों का बैच रहता है, उसमें से 30 बच्चे लड़कियां रहती है और 60 to 70 बॉयज रहते हैं। और मेरा पिछले 20 सालों से मैं ट्यूशन ले रहा हूँ। तो मैं मेरा एक ऑब्जर्वेशन है मैं जो आपके सामने पुट करना चाहूंगा कि लातूर के जो तालुकाज है, लातूर डिस्ट्रिक्ट के जो तालुकाज है, उसमें के रूरल एरिया से बहुत सारे टीचर्स रह चुके हैं मेरे पास, पेरेंट बोल के। उनके लड़के और लड़कियां उन्होंने लातूर में कुछ अच्छे स्कूल में पढ़ाने को उनको रखा था और उनमें से बहुत सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन चुके हैं। मतलब लड़कियां की बात कर रहा हूँ मैं, डॉक्टर इंजीनियर बन चुके हैं। और डिस्ट्रिक्ट प्लेस में रहने से यहाँ पे लड़कियों का एजुकेशन बहुत अच्छा है। जैसे कि आप जानते हैं कि ओवरऑल इंडिया में लड़कियां एजुकेशन में आगे है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे रूरल एरिया से, तालुका गाँव के छोटे छोटे गाँव से लड़कियां पढ़ने को बहुत सारे स्कूल्स में आते हो और वो मेरे पास ट्यूशन में रहते थे। उसमें से बहुत सारे बच्चे मेरे हाथों के पढ़ के इंजीनियर्स बन चुके हैं। ये मेरी हो गए। और मैं दूसरा एक बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने मेरा बैकग्राउंड रखा कि भाई मैं ट्यूशन चलाता हूँ डिस्ट्रिक्ट प्लेस में। मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे है, जैसे कि आप होस्ट है और सभी पार्टिसिपेंट से, कि आप अपना बैकग्राउंड रखिए ताकि मेविशा फाउंडेशन ये वेबिनार थ्रू कहाँ तक पहुंचना, कौन कौन से पार्टिसिपेंट तक पहुंच रहा है, और आप पार्टिसिपेंट्स का बैकग्राउंड भी मेविशा फाउंडेशन जो होस्ट है उनको भी समझ में आ जाएगा। थैंक यू मैम। बहुत अच्छी बात कही है आपने सागर जी, क्योंकि देखिए आप जैसे कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम महाराष्ट्र में, नो डाउट बहुत ही अच्छा है। एंड ये सब क्या किस लिए है? देखिए आप लोग भी तो पढ़ा रहे हैं, इसीलिए तो हो रहा है ना। आपने कहा बहुत सारी लड़कियां इंजीनियर डॉक्टर बनी हैं, तो हाँ, उनको एजुकेशन सिस्टम किसी ने पहुंचाया, तब उन लोगों ने इतना सब कुछ किया। यस यस। मतलब महाराष्ट्र के बाहर के एक टीचर, उनका मेरा इंटरेक्शन हुआ था, तो उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र का एजुकेशन सिस्टम जो है ऑलमोस्ट फ्री है। ओके। हाँ। अभी ये बात अलग है कि मेट्रो जो सिटीज है वहां पे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट मैनेजमेंट चलाते हैं और उनका फीस भी अलग रहता है। आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट बिकॉज